तो सामने खड़ी है आपके BMW। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, आप लोग एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट्स, तो उसके बाद हम बात करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste. आपको अच्छे लगे होंगे सिनेमैटिक शॉट्स बाइक के, कैसे लगे कमेंट करके बताना। और तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, होप सो ठीक बन रहा होगा, क्योंकि यार मेरी हेल्थ आपको पता ही है कि ख़राब थी। जिनको नहीं पता प्रीवियस ब्लॉग देखो, पता चलेगा आप लोगों को। सो अभी 100% रिकवर नहीं हुआ, बट इट विल टेक थोड़ा सा और टाइम। बाकी जितना भी हुआ हूँ, थैंक यू सो मच आप सबकी दुआ के लिए। सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट शरबाज नॉन एज इंडिया ऑन व्हील्स। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में बात करना, और मैं बताऊंगा इस बाइक के बारे में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। ज़्यादातर मैं एडवांटेज ही बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जैसे 2-3 महीने हुए तो डिसएडवांटेज ऐसा कोई दिखा नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक की सर्विस कॉस्टिंग की। इसकी फर्स्ट सर्विस जो होगी वो 1000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ कंप्लीट होगा तो इसकी होती है 10,000 रुपीज़ प्लस GST। वहीं पर इसकी सेकेंड सर्विस जो होती है वो होती है आफ्टर 1 ईयर और प्लस 10,000 किलोमीटर, और वो भी 10,000 रुपीज़ प्लस GST। और उसमें अगर कुछ पार्ट चेंज हो रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, बट ये नॉर्मल सर्विस कॉस्टिंग बता रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं हम लोग पार्ट्स की, तो यार फिर मैं वही बोलूँगा जैसे इसका नाम है BMW, वैसे इसके पार्ट्स के जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी आपको लोग बताया था, इस सबसे छोटा पार्ट इसका यही है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर की कॉस्टिंग क्या आती है? 7,500 रुपये प्लस GST। मतलब सोचो इसका एक इंडिकेटर इतने का पड़ता है। 1 2 3 4 इंडिकेटर कितने के पड़ेंगे सोचो। इसका कोई भी पार्ट ले लो आप, चाहे इंडिकेटर ले लो, क्योंकि इंडिकेटर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका सबसे छोटा पार्ट है पूरी बाइक के अंदर। अब इसके अलावा जितने भी पार्ट है ना वो उससे महंगे ही हैं। ये हो गई इसकी पार्ट्स की बात की, मतलब अगर आप इसको बाइक को ले भी लेते हैं तो उसके बाद इसके क्या क्या एक्सपेंसेस आपको फेस करने के लिए पड़ेंगे वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसकी राइडिंग क्वालिटी की। राइडिंग क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। मतलब आप इसको अगर राइड करोगे ना तो आपको फील आएगा कि हाँ यार, मतलब कुछ अच्छी रिफाइंडिंग मशीन जो है आप उसको राइड कर रहे हो। काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे पिकअप हो गया, टॉप स्पीड हो गई, या फिर मैं क्लच की परफॉर्मेंस की बात करूँ, क्लच है, राइडिंग में है आप क्लच यूज़ करते हैं। बाय द वे क्लच भी और ब्रेक भी है, दोनों ही एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यस, इसके क्लच वगैरह, ब्रेक्स वगैरह, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई आपको डिसएडवांटेज फील नहीं होगा कहीं पे भी। और इसके अलावा अगर मैं इसमें फ़ीचर्स की बात करूँ तो देखो फ़ीचर्स में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब जो नीड होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑडोमीटर में, तो देखो स्क्रीन देखने में तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगी। इसके बाद यहाँ पे इंजन टेम्परेचर बता देगा और रेंज दिखा देगा कितने किलोमीटर चल सकती है इतने फ्यूल में। तो मतलब ये बहुत वही है। मैं अगर बात करूँ जो होता है ना नीडेड फीचर, सिर्फ इसमें वही है, एक्स्ट्रा के फीचर्स नहीं है। जैसे अगर मैं इसके कंपैरिजन में करूँ KTM 390, उसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी।
और दोनों ही सेगमेंट में आपको दो चीज़ों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ये ब्रांड है BMW, वो है KTM। तो यार अगर ब्रांड लवर्स के लिए ये सबसे बेस्ट है, और अगर जिनको सिर्फ और सिर्फ फीचर्स लोडेड चाहिए उनके लिए KTM एडवेंचर अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुरी है या वो बुरी है, दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैंने 390 एडवेंचर भी चलाई है और ये तो आपके सामने ही खड़ी है, और दोनों बाइक चलने में बहुत लाजवाब है। तो उसके बस एक इलेक्ट्रॉनिक का यही डिसएडवांटेज है, चाहे वो KTM 390 एडवेंचर हो या RR 310 BMW हो, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स में यही इशू आता है कि अगर कहीं पे आपका कोई भी ब्रेकडाउन हो गया तो भाई आपको मैकेनिक ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और अगर मिल भी गया तो फिर उसके पार्ट्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है। वहीं पे इस बाइक की बात करूँ तो काफ़ी रो इंजन है, काफ़ी रो इसके फीचर्स हैं, और उतने फीचर्स में दिए गए हैं जितने कि बहुत ज़्यादा नीडेड और लिमिटेड होने चाहिए। फिर वहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं GPS माउंट फोन होल्डर हमने लगवा ही लिया है बाहर से। ये अब वैसे मॉडिफिकेशन का व्लॉग मैंने अलग से बना के रखा है, तो इसमें मैं कवर अप नहीं करूँगा मॉडिफिकेशन का कोई भी पार्ट। आप मॉडिफिकेशन का व्लॉग जाके देख सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन के बारे में मैंने बात की है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो यार देखो हमने साहिल को बिठा दिया है। हेलो। तो साहिल की जो हाइट है वो है 6 फीट 2 इंच, मतलब कैमरे में भी कवर नहीं हो रहा है। तो अब इसकी मैं अगर बात करूँ, देखो बैठने के बाद में इसके दोनों जो पाँव हैं वो ज़मीन पर एकदम लगे हैं, और नी भी थोड़े फिर भी बैंड हैं इसके। तो और एक अच्छी चीज़ क्या है इस बाइक के अंदर कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब जैसे आप बाइक पे बैठोगे ना तो वो एकदम नीचे हो जाएगा। देखो ये देखो, जैसे वो हिप टच करेगा वो सस्पेंशन नीचे जाएगा। तो इसमें एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहीं पे एडवेंचर की अगर मैं बात करूँ 390 एडवेंचर, तो उसका सस्पेंशन कहीं ना कहीं स्टिफ है, वो इतना सॉफ्ट नहीं है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। अगर मैं बात करूँ उसकी क्लियरेंस की, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो मेरी। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप चेक कर सकते हैं। और व्हील बेस वगैरह काफ़ी बड़े हैं इसके। ये जो चीज़ है गोल्डन, ये कंपनी से आपको मिलता है, तो बाहर से आपको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट की भी कुछ ऐसी है बात इस बाइक के अंदर। तो भाई अब एक बार साहिल से और कंफर्म करते हैं कि जो बैठने के बाद जो फील है, मतलब पोस्चर जो है वो इसको क्या फील हो रहा है। एक बार यार बताएगा, मतलब जैसे बाइक पे बैठा है अभी, तो क्या फील कर पा रहा है बाइक के ऊपर बैठने का? बाइक पे बैठने के बाद लग ही नहीं रहा है कि नॉर्मल बाइक पे बैठा हूँ मैं। मतलब मॉडिफिकेशन के बाद भी और वैसे भी ना कुछ बल्कि है। इसका टैंक देखो कैसा है, बिल्कुल बल्कि और हैंडल बार ये इसका। और अगर तू सपोज करके रोड पे इसको राइड करने के लिए जाएगा तो क्या तुझे लगता है? तो मतलब बहुत बल्कि टाइप है, बहुत बड़ी बाइक है, और जो इसका रोडिंग प्रेशर है ना, मतलब कोई देखे बिना रह ही नहीं सकता। चलो यार, ये तो इसका राइडिंग पोस्चर की मैंने बात बता दी, और हमने सीट बाय द वे इसकी कंफर्टेबल कराई थी। ये भी मैं कवर नहीं करूँगा, ये आप इसके व्लॉग में जाके देख सकते हैं, मतलब मेरे व्लॉग में, बट प्रीवियस व्लॉग में, जहाँ पे आपको पता चलेगा हमने सीट इसकी किस तरीके से कैसे कंफर्टेबल कराई है। और यार बाइक के बारे में और मैं क्या ही बताऊँ। देखो राइडिंग पोस्चर मैंने आपको बता दिया, सर्विस कॉस्टिंग बता दी, पार्ट्स बता दिए, राइडिंग क्वालिटी, एक्सेसरीज मैं कवर नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में। और इसके बाद फीचर्स मैंने आपको बता दिए, मतलब आपको 5-6 चीज़ें मैंने बाइक के बारे में बता दी हैं। तो ये था आज इस बाइक का रिव्यू। कैसा लगा ज़रूर से कॉमेंट करके बताना। और यार वैसे भी ना मेरी सांस फूल गई, क्योंकि ना मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे चल रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट किया है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना जैसा भी बना होगा। आई होप सो अच्छा ही बना होगा। तो बाइक के बारे में यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। एक बार इधर से भी दिखा देता हूँ, कभी आप लोग बोलो यार ये वाला साइड क्यों नहीं दिखा रहे। लो भाई ये वाला साइड भी देख लो। सिनेमैटिक शॉट्स तो दिखाई दिए, और यार भाई मौसम हो गया ख़राब। तो यार इस व्लॉग को करेंगे हम लोग यहीं पे ख़त्म। होप करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, और एटलीस्ट इस बाइक के लिए जो इतनी प्यारी लग रही है ना, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट कर देना, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें बाइक में क्या कराना चाहिए। प्यारी प्यारी रील्स देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। होप करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज सिविया ऑन व्हील्स। बाय बाय।